person, educated leader, being a teacher. So everybody here who has gathered today has done a tremendous job somewhere, and we have touched 1,000 lives in many ways. And happy Teachers Day and congratulations on being the award winner today. And thank you for taking out time and being here. I would also like to extend my thank you to the organizing committee, to the Affordable Pricing Group Association that I've been associated for very long. Each one of you that has come today, I can just say that we honor you in every way possible. मैंने जितना भी काम एजुकेशन में किया है और आप लोगों के साथ करा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं काफ़ी पहले से जानती हूँ और कुछ लोग हैं जो मेरे न्यू एसोसिएशन में आज जुड़े हैं. So I would say please take it as an extension of an honor. Take it as a celebration of your day, that is Teachers Day. And one more thing, I would like you to welcome our chief guest who has come especially from Nagpur to join us today for this function. I will be introducing him once he is here. His name is Girish Gandhi ji. A lot of you will be familiar and others will get to know him today. His personality, he's a guru for us in every sphere of life. He's a great economist, great social worker, great political leader, green activist. I don't know how to introduce him in words, but when he's present here, you will feel that why we have chosen him to give the national award. And welcome to something that we are starting, and this is our first event, and this will continue for years to come. Every year I hope that we are able to create something to invite you all and create a special memory for Teachers Day. So thank you all, and a big round of applause for all of you, the award winners today. Lakshya sir, my co-organizer, to welcome everybody. Affordable Private School Association श्रीमती सावित्रीबाई फूले नेशनल अवार्ड का आयोजन कर रही है. आप सब आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं. एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी होती है. डॉक्टर एक गलती करेगा, कुछ मरीज पर लोग चले जाएंगे. साइंटिस्ट गलती करेगा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कभी सक्सेस मिल जाएगी. टीचर अगर कुछ गलती करेगा तो पूरा समाज विघटन की तरफ चला जाएगा, समाज खराब हो जाएगा. तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की. अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं. फिर से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हम गुरु वंदन कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं. आप सब यहाँ आए हैं, आपको कोटि कोटि नमन. ऐसे ही आप शिक्षा में अपना योगदान देते रहें, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें. ईश्वर से आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे. ऐसे ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. धन्यवाद. Learn more, do more, and become more. You are definitely an excellent teacher. And that's why we all are here sitting to be felicitated. Good afternoon to all the distinguished guests, Team Affordable Private School Association, honorable trustees, principals, and teachers of reputed schools. I am Bindu Bhatia and she is my co-host, Miss Atmajyoti, feeling honored to be here as the anchors of this mega Teachers Day celebration and Srimati Savitribai Phule National Award Ceremony. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Teaching is the profession that teaches all the other professions. Sir has rightly said that recently Chandrayaan 3 has made history by becoming the first mission to soft land on the lunar south pole. August 23 has been recorded as a historical date in the history of space. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has rightly said कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं. बहुत जल्द हम भी टूर पे जाएंगे. So a big salute to, एक बार जोरदार तालियां टीम इसरो के लिए. We extend our heartiest congratulations to all the esteemed scientists and to all the proud Indians.
ISRO has played the biggest role in the success. But my question is, who inspired them to become such great scientists? Yes, we, the teachers. So a huge round of applause once again for all the teachers and principal for such a huge achievement. तालियां जोरदार नहीं लग रही हैं भाई, खुद के लिए बजानी है फिर तो जोरदार होनी चाहिए. Right, for all of us to welcome, appreciate and recognize your commendable hard work and your unparalleled education. At this Teachers' Day celebration and Srimati Savitribai Phule National Award Ceremony 2023 being organized by Affordable Private School Association and powered by SHAPE, Glencorn Publishing House and Synergy Institute of Music. The famous quote of Srimati Savitribai Phule, "Your education is the passport for your better future," gives the essence of her entire journey. Everybody knows she was an early female teacher of India, a social reformer, educationist and a well-known poet from Maharashtra who played a vital role in improving women's rights in India. Srimati Savitribai Phule is considered to be the pioneer of India's feminist movement. She is the one who helped set up the first school for girls in our country. She also fought against dowry and other social evils that obstruct women's empowerment. So ladies and gentlemen, let us all remember her for her utmost valor, pride and contributions to promote a society that treat men and women equally. A huge round of applause once again for Srimati Savitribai Phule. सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करती हूँ जहाँ मुझे अभिव्यक्ति का मौका मिला. नमस्कार, सुस्वागतम, तुमच्या खूप खूप अभिनंदन आहे. मैं आत्मज्योति शर्मा यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. हमारे जाने दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो. इन पंक्तियों की रचयिता है भारतीय स्त्री आंदोलन की अगुआ, कवित्री, चिंतक, भारत की प्रथम अध्यापिका और सामाजिक क्रांति की अगुआ सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने 18वीं सदी में लगभग 48 वर्ष तक महिलाओं और वंचित समाज के लोगों के लिए अनथक कार्य किए. इन्होंने अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लगातार लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोलकर इतिहास रच दिया. जिंजिया मुले शिकली, दीन दुबल्यांची मुले, ती ज्ञानदाती, ती ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले. स्त्रियांच्या शिक्षणाची खरी सावित्री तूच केवारी, तुझ्या मुलेच शिकले आहे आज प्रत्येक नारी. नमन करें हम सावित्रीबाई को, जिसने नारी शिक्षा की अलग जगाई, अज्ञानता का अंधकार दूर कर उसने ज्ञान की ज्योति जलाई. जी हाँ दोस्तों, जब शिक्षक छात्रों को शिक्षित करता है तो इस देश को ना जाने कितने विवेकानंद, महामहिम अब्दुल कलाम, नीरज चोपड़ा और मानव कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी प्राप्त होते हैं, जो माँ भारती के दामन में नभ के सितारे भर देते हैं. ऐसी होती है गुरु की महिमा. और आज इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के 11 शहरों से 52 स्कूल प्रिंसिपल्स और 130 टीचर इस भव्य समारोह के साक्षी हैं. तो कितना बढ़िया कहा है संत कबीर ने, सब कागज धरती करूं, लेखन सब बरनाए, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इस प्रांगण को हम गुंजायमान कर दें. जी का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, इनके जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं. साथ ही आदर्श पब्लिक स्कूल से टीम अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का स्वागत करना चाहती है. मैं टीम एप्सा से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मंच पे आ जाए. रोहित जी, प्रमोद जी, निकुल जी, विवेक जी, योगेंद्र जी, अखिल जी, अनन्या जी, आप भी आए, आप भी हमारी टीम का हिस्सा है. योगेंद्र जी अगर सुन रहे हैं आवाज तो स्टेज पे आ जाए.
विशेष जी आइए सर, आइए इधर आइए, आप आगे आगे। Dalmia Business Group. So we have a representative from Dalmia's, Mr. Ajay. Would you like to come on stage and welcome all of us? And also Mohit sir from Synergy Group of Music. I'll request Neeta ma'am to welcome her. Flowers. सर अगर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो सामने पीछे बोर्ड ही है। यस प्लीज। The Dalmia Bharat Group, we are the monument mitras of Red Fort. So I'm not sure how many of you have really visited Red Fort. अब कितने लोग लाल किला recently गए हैं? But लाल किले पे इस वक्त वर्ल्ड का टॉप 5 साउंड एंड लाइट शो रन होता है, you know, and we have curated that. There are 80 dancers every day that dance, you know, so I invite all of you to just have a look at what Red Fort is now all about, and also bring your school children. There are these brochures that we'll be leaving at all the tables, you know, it has all the details of, you know, of the educational tour that you guys can organize for the children. Thank you so much. Yes, as Teachers Day present, I can ask her to give us a gift. Why not a free tour for all of us? Absolutely. Right? So I'll tell you, you can book us from Book My Show also. There are 3 layers. It's 1500, 1000 and 500. But for Teachers Day, all of you can just, you know, maybe via Ananya, you can give us a call and we will entertain you, you know, free of cost. Only to principals and teachers. So Anju ma'am, we are happy now, yeah? Okay. Yeah. Lakshya sir. Anju ma'am, आप करें, okay sir. Sir, please accept our welcome. And Nitesh sir, please. Thank you. Sir, on stage, Kartal Javan sir. Ananya ma'am for inviting me here to say a few words about our esteemed guest, Shri Haripal Rawat ji. It is a very moment of honor that हमारे बीच में आज हरिपाल सर आए हैं, and I have, you know, I've tried to gather a few lines about him. Shri Haripal sir is currently Joint Secretary of All India Congress Committee, and as well as he is holding the charge of General Secretary General Secretary in charge in Assam. श्री हरिपाल जी ने आज के समय में हमारे उत्तराखंड और असम के पहाड़ी इलाकों में जनसाधारण से जुड़कर विभिन्न समस्याओं का निवारण करते हुए एक आम आदमी और जितने भी किसान भाई हैं उन सब के दिलों में अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाई है। हम सर का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैम आइए तो का स्वागत कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सर आप लोग इधर आइए प्लीज। यस
you, sir. Thank you. To perform a beautiful song before all of us. Are you a round of applause? Thank you so much. To mention, I would like to say that Synergy Institute of Music is passionate about bringing quality music education to all students and create a deeper impact on how music education is imparted in our country. So a huge round of applause for SIM, Synergy Institute of Music. Thank you. I would now request music. So what we do is we are here to partner with schools to help them with their music program in school. So the way we function is that when a music period happens in our partner schools, we equip a school with a music lab which has around 40 to 50 instruments, and there is a specific syllabus which we follow, which is graded by either Trinity College of London or Vienna Boys Choir, which really helps all the school students in their ECA activity certificate also, which is ECA quota. So, thank you. Thank you, Mohit sir. Thank you. I would now request everyone to welcome our chief guest with a big round of applause here with us. Thank you, sir, for accepting our invite. I would invite Lakshya sir to be with me. Ladies and gentlemen, the most awaited moment has come finally. We are profoundly delighted to take the opportunity to welcome our esteemed chief guest, the renowned social worker, the man of values, Shri Girish Maniklal Gandhiji. It's a great honor to welcome such an invitation and adding grace and charm to the event. Thank you so much. Harpal sir, please join us on stage.
respected chief guest for today, Shri Girish Gandhi ji, esteemed organizers, honored devotees, and distinguished guests, I extend my warm greetings to everyone gathered here today. We have come together to celebrate the vision and values of Savitribai Phule ji, a pioneering social reformer who dedicated her life to elevating women and the marginalized sections of society through the transformative power of education. It is my privilege to welcome Shri Girish Gandhi ji as this year's recipient of the Savitribai Phule National Award. His efforts over 4 decades in spreading the message of ecological sustainability, integrated rural development, and social justice makes him an ideal torch bearer of Savitribai Phule's legacy. Shri Gandhiji's work has touched millions of lives, from turning arid lands into lush green forests, through mass afforestation drives to empowering rural communities to manage their own water resources. His emphasis on participatory approaches and inclusive development upholds Savitribai Phule's vision of an equitable society. On this occasion, I would like to reiterate our organization's commitment to carry forward Savitribai Phule's mission. We will continue our efforts to uplift the marginalized, promote women's education, and cultivate ecological awareness, especially amongst the youth. I once again congratulate Shri Girish Gandhi ji on being conferred this award and invite him to share his insight with us. His presence and words of wisdom will surely motivate all of us gathered here today. Thank you so much, sir, for being here. I would now request Lakshay sir, Haripal Rawat ji, Neerja Sabui ma'am to greet sir, and then we will move ahead with the lighting of lamp ceremony. तो तालियों की गूंज के साथ हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और यह पंक्तियां हम अपने अतिथि की गरिमा में व्यक्तित्व को समर्पित करती हूँ। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सब जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव समान हम सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान आप पधारे यहाँ, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। Haripal Rawat with bouquet and memento. Shri Haripal Rawat, Joint Secretary of All India Congress Committee. A huge round of applause. जिस प्रकार शिक्षा जड़ता का नष्ट करती है, वैसे ही दीपक अंधकार को नष्ट करता है। यही दीप हमें अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रेरणा देता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री गिरीश मानिकलाल गांधी जी, श्री हरपाल यादव जी और हमारे एप्सा परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that.
is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm to life and to everything. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Synergy Institute of Music once again, presenting a melodious welcome song for our esteemed chief guest and all the guests of honors of the event. Synergy Institute of Music, can we have you on the stage, please? किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने और उसके पीछे एक बेहतरीन व्यवस्था नेतृत्व का गुण होता है और इसी नेतृत्व की भूमिका को बहुमुखी ढंग से एक ऐसे व्यक्तित्व ने संपन्न किया है जो अधिकृत, समर्पित, सूचनाशील, प्रेरणादायक, संगठित, सहयोगी, धैर्यशील, विचारशील, निष्ठावान और ना जाने कितने अनगिनत ऐसे शब्दों को सार्थक करते हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित हैं, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड जिनके नाम है और हाल ही में जिन्हें स्किल एम्बेसडर से पुरस्कृत किया गया है। मैं आप सबकी करतब ध्वनि के साथ आमंत्रित करती हूँ अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य छबरिया जी को कि वह आए और आज के कार्यक्रम के विषय को प्रतिपादित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खुशी कि आप सब आज यहाँ सावित्रीबाई फूले नेशनल अवार्ड में आज इकट्ठे हुए हैं और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे को आज आशीर्वाद मिला है डॉक्टर गिरीश गांधी जी का। बाबू जी को नमस्कार। और आज हम सबसे पहले इस
अवार्ड की शुरुआत बाबूजी को सम्मानित करके कर रहे हैं, और उस अवार्ड की जो वैल्यू बाबूजी को सम्मानित करने से सुशोभित हो गई है, बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इसी अवार्ड को हम आगे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे, तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स की भी शोभा बढ़ेगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर गिरीश गांधी जी से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद। और अजय पाटिल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो महाराष्ट्र से, नागपुर से पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनसे निवेदन है मंच पे आएँ, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सावित्रीबाई फुले के स्मृति को नम्र अभिवादन करता हूँ मेरी ओर से और आप सभी की ओर से। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय रावत जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय छाबरिया जी, लक्ष्य छाबरिया जी, इस संगठन के सभी आदरणीय पदाधिकारी सदस्य जिन्होंने आग्रह से मुझे इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया, वो अनन्या बेदी, हिमांशु बेदी, सभागार में उपस्थित जानकी राम जी, जानकी प्रसाद, जानकी बल्लभ जी, वनराई फाउंडेशन के हमारे सचिव नीलेश खांडेकर जी, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के अध्यक्ष और नागपुर के जाने माने समाज सेवी राजनीतिज्ञ आदरणीय अजय पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सावित्रीबाई फुले के नाम से जो अवार्ड आप लोगों ने शुरू किया, उस अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। इस अवार्ड का मैं हकदार कितना हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन सावित्रीबाई फुले अगर समझो समाज में नहीं होती तो कितनी हमारी बहनें, कितनी सारी महिलाएं एजुकेशन से वंचित रहती, ये हम बता नहीं सकते। उस दौर को आप याद कीजिए कि जिस वक्त महिलाओं के शिक्षा के बारे में न तो जागृति थी और न ही बच्चियों को अलाउ करते थे पढ़ाई के लिए। ऐसे उन दिनों में आज हमको सब आसान लगता है, आज सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हुई है। जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं, बहुत अच्छी लगन से, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छा शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, इसका मुझे बड़ा फक्र है। लेकिन उस वक्त का समय याद कीजिए जब समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, अंधश्रद्धाओं पे हमारा सारा विश्वास था। उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने, उनकी उम्र कितनी थी, और महात्मा फुले जो उनके पति थे, वे भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उस जमाने में जो उनका विजन था, वो विजन यानी उसको किसने किसने नहीं माना, उनकी विजन को। हमारे भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी उनको अपने गुरु के रूप में माना है, महात्मा फुले को। ऐसे महात्मा फुले सामाजिक प्रोसेस में, सामाजिक प्रक्रिया में तो हिस्सा लेते ही थे, पर वो उस वक्त किसानों के संदर्भ में उनका अध्ययन बहुत गहरा था। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उनकी जो सोच थी, वो बड़ी सुलझी हुई सोच थी। उस जमाने में सामाजिक परिवर्तन के बारे में किसी ने चर्चा करना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी मानी जाती थी। और उन्होंने उस जमाने में, उस वक्त पे सावित्रीबाई को उनकी पत्नी बनने के बाद में उनको पढ़ाया, और उनको वहाँ पर पुणे जैसी जगह पर, जिस पुणे को बहुत ही, यानी इस मामले में पुणे बाकी संस्कारों के हिसाब से, विद्या के हिसाब से बहुत आज प्रतिष्ठित शहर है। और उस वक्त
लेकिन सामाजिक रूढ़ियाँ तोड़ने के मामले में सामाजिक परंपराएं जो गलत परंपराएं थी, अच्छी परंपराएं तो आज भी हमने कायम रखनी चाहिए। उस वक्त की जो बुरी परंपराएं थी उन सारी परंपराओं को तोड़ने के लिए इन सावित्रीबाई ने और फुले ने, महात्मा फुले ने, दोनों ने भी बड़ा सक्रिय योगदान दिया। यहाँ तक कि विधवा बच्चियों को, विधवा जो महिलाएं थी उस वक्त की, उनको पढ़ाई के लिए वहाँ पर स्कूल में उन्होंने प्रवेश दिया। और एक परिवर्तन की बात जो आई पढ़ाई के संदर्भ में, वो हमने उस वक़्त के ज़माने का जो कुछ भी माहौल था उस माहौल को ध्यान में रखकर अगर सोचे तो कितना कठिन काम था। महात्मा फुले तो उसके आगे जाकर उनकी जो एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें उन्होंने देश में पहले टनल्स बनाए जो आजकल कॉमन हो गए टनल्स, वो बनाने वाली कंपनी वो थी। मुंबई में बहुत सारे लोग गए होंगे। मुंबई का जो विक्टोरिया वीटी स्टेशन जिसको बोलते हैं, उसका भी जो नक्शा है वो उन्होंने किया हुआ है तैयार, उनके फर्म ने, महात्मा फुले जी के फर्म ने तैयार किया है। ऐसे उस जमाने में वे भी बड़े पुरोगामी थे, बड़े प्रोग्रेसिव विचारों के थे, और उनके साथ में सावित्रीबाई ने बहुत गजब का काम किया है। और महात्मा फुले की भी ये खासियत रही है कि महात्मा फुले ने अपने पत्नी को बराबरी का हकदार माना। उस जमाने में पत्नी को सम्मान देना ये बड़ी यानी विरल बात थी। बहुत कम केसेस ऐसी रहती थी कि जहाँ पत्नी को अपने बराबरी का स्थान देते हैं। आज हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ सभी बहनों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भी जो आपकी स्थितियाँ हैं सम्मान के बारे में, क्या उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया? आज भी हम पत्नियों को, हमारी महिलाओं को, हमारे सभी इनको यानी जो समझते हैं महिलाओं को, आज भी दुय्यम स्थान हम देने की कोशिश करते हैं। हर परिवार में उसका रोल अहम होता है, लेकिन उसका जो स्थान है वो आज भी, भले ही वो कमाने वाली स्त्री बनी हो, और इसके लिए आपकी भी मानसिकता बहुत सारी कायम है। मुझे लगता है कि आप में से यहाँ जो भी उपस्थित है, बड़ सावित्री आती है ना, कोई मनाते हैं क्या बड़ सावित्री? बड़ की पूजा वगैरह करते हो क्या आप लोग? काफ़ी महिलाएं पूजा करती होगी। अरे मालूम है कि जो पति है हमारा, वो हमको हमेशा जिंदगी भर तकलीफ देता रहा, शराब पीकर घर में आया, फिर भी वो आई वड़ सावित्री वगैरह जिसको बोलते हैं, वड़ पूर्णिमा, वड़ यानी बड़ का झाड़, हाँ, वो जो भी है त्योहार के दिन वो धागा बांधकर बोलती है कि यही पति हमको 7 जन्म तक दो करके। आप पढ़ी लिखी महिलाएं आज भी उसी मानसिकता में अगर रहती हो तो सावित्रीबाई फुले नहीं, ब्रह्मा जी भी अगर आ गए तो भी आप में परिवर्तन नहीं हो सकता। सावित्रीबाई उस महिला का नाम है जिसने महिलाओं के बीच में जीने की उम्मीद पैदा की, जिन्होंने जीने की आशा निर्माण की, जिन्होंने ये पहली बार साबित करने की कोशिश की कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार रहने को होना, पुरुषों के से कम महिलाएं नहीं हैं। आज भी हमारी महिलाएं देखते हैं हम, अब चंद्रयान वगैरह में तो कितनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा महिलाओं का कि जहां पर उनको मौका मिलने के बाद में उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है, जो अपना इंटेलिजेंट है, जो अपना एक एकेडमिक करियर है, उसको उन्होंने साबित न किया हो। ये सारी बातें हुई है, फिर भी अगर हम सामाजिक स्तर पे देखें तो महिलाओं के बारे में जो एक मानसिकता पुरुषों की है, वो पुरुषों की मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है। मैं तभी सार्थक समझूंगा ये पुरस्कार लेने में कि आप में से हर मेरी बहन इस चीज़ का विरोध करे कि अगर घर में हमको पति फिजूल की दादागिरी करते होंगे तो हम नहीं मानेंगे। जितना उनका अधिकार है परिवार में, उतना आपका भी अधिकार है, लेकिन अधिकारों का भी हम कैसे वापर करते हैं इस पे निर्भर है। मैं मानता हूं कि पति और पत्नी दोनों भी संसार का जो कोई एक रथ रहता है उसके 2 पहिए हैं, लेकिन एक पहिए पे अगर ज़्यादा जोर देंगे
और दूसरे पहिए को सारी सुविधा मिलती होंगी तो गाड़ी बराबर चल नहीं सकती। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सावित्रीबाई के भाई फुले के नाम से एक अवार्ड शुरू करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला वर्ष है ये, पहला वर्ष है। तो इसकी शुरुआत करते वक्त हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि पुरुषों को कम सिलेक्ट करो, लेकिन जो महिलाएं इस दिशा में काम करने वाली होंगी उनका चयन करो। उनको लगने को होना कि हमें कुछ तो भी परिवर्तन आने को होना, उनको ये लगने को होना कि जीने का अधिकार और स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमको मिलने को होना। इसलिए सावित्रीबाई के कुल मिला के जीवन कार्य को समझ लेना आवश्यक है। क्या उम्र थी उनकी उस वक्त की। मैं ज़्यादा विस्तार में अगर बोलने लगूं तो 1 घंटे तक मैं बात कर सकता हूं उनके सारे जीवन चरित्र पर सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम किया है। शहरों में लोग रहने वाले लोगों के लिए तो आसान है, पर दूर दराज रावत जी बैठे उत्तराखंड में, पहाड़ी एरिया बोलते हैं, हमारे जानकी वल्लभ भी वहीं के हैं, उत्तराखंड के ही है। तो वहाँ पे देहातों में रहने वाली महिला हो, चाहे हमारे नागपुर के इर्द गिर्द रहने वाली देहातों में रहने वाली महिलाएं हो, आज भी उनकी स्थितियाँ बहुत खराब है। आज भी स्थितियाँ खराब है। आज भी दहेज के लिए महिलाओं को जलाया जाता है। कोई हम रिपोर्ट कितना भी अच्छा तैयार कर ले, रिपोर्ट तैयार करना बहुत आसान हो गया आज का। और लेकिन आज भी वो बातें जो समाज में है, उनसे लड़ने वाली जो भी महिला होगी, वो चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, या कोई सामान्य स्त्री हो जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनको हर साल ये पुरस्कार देने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि इस पुरस्कार को रखने का आपका सार्थक हो गया होगा, सार्थक हो जाएगा। मैं सभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और एक अच्छा संगठन आप लोगों ने बनाया है, आपको भी सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आज हमारे परिवार बहुत सारी शायद टीचर ज़्यादा होंगे परिवार में, आज हम या स्कूल में हम पढ़ाते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फैमिली। बच्चे जवाब देते हैं कि माय फादर, माय पापा, माय मम्मी, माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो सीमित परिवार हो गया है, इसको बदलो। उनको समझने दो कि परिवार में रिश्ते में मौसी भी होती है, फूफी भी होती है, बुआ भी होती है, दादी दादा भी होते हैं, नाना नानी भी होती है, समाज भी आता है और समाज के साथ साथ देश भी आता है। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज पूरा विघटित परिवार हो गया है। केवल स्कूली किताबें पढ़ाना वो तो आपकी जिम्मेदारी है ही, एकेडमिक करियर तो बच्चों का अच्छा होने को ही होना, लेकिन इसके साथों साथ अच्छा इंसान बनने के लिए और अधिक अच्छे संबंध पारिवारिक निर्माण होने के लिए बच्चों को इस तरह की तालीम देना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं भी 1970 में लेक्चरर था। मैंने 3 विषयों में एमए किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में, और लेक्चरर बना मैं एमए होने के बाद में। और लेक्चरर होते हुए एक हमारे जस्टिस धर्माधिकारी साहब थे, शायद आपने नाम सुना होगा। उनके पिताजी दादा धर्माधिकारी सर्वोदय के बहुत बड़े विचारक थे। तो उनके बेटे थे, बाद में वो जस्टिस बने हाई कोर्ट के। उन्होंने बोला एक भाषण में, मुझे देखकर, मैं सामने बैठा था श्रोताओं में, कुछ लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में रहने का व्रत रहता है उनका, लेकिन लेक्चरर, प्राध्यापक वगैरह कहलाने में उनकी कॉलर टाइट होती है। ऐसा उन्होंने जब बोला, मुझे देखकर ही बोला था, क्योंकि उनको मालूम था, कई बार मेरी उनसे चर्चा होती थी, क्योंकि हमने जो कुछ भी सीखा है वो दादा धर्माधिकारी के विचारों से, विनोबा के विचारों से प्रभावित होकर ही हमने हमारे जीवन की शुरुआत की है। गांधी, विनोबा, ये हमारे सारे दैवत थे उन जमाने में। तो उन्होंने जब ऐसा बोला, तो मैंने जब सेशन ख़त्म हुआ अप्रैल में, मैंने इस्तीफा दिया मार्च अप्रैल में,
और उनको मैंने बोला कि मैंने लेक्चरशिप का इस्तीफा दिया, अब मुझे टीचरशिप दिला दो। और बाद में मैंने 1.5 साल तक टीचरशिप की, लेक्चरशिप छोड़ के टीचरशिप किया। और बाद में मैंने तय किया कि कुछ भी मैं करूँगा लेकिन टीचर नहीं बनूँगा, टीचर नहीं रहूँगा। जैसा कि मैंने शुरू में किया कि बहुत अच्छी स्कूलें बन गई है, इमारतें आपकी बहुत अच्छी बन गई है, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है, लेबॉर्ट्रीज बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे खराब चीज़ कुछ स्कूलों में, मैं बोलता हूँ नहीं तो सबको बुरा लगेगा, कुछ स्कूलों में आज भी सबसे गंदी अगर जगह होगी तो वह स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में जिस तरह से चर्चा होती है, वो चर्चा का स्तर अगर हम देखेंगे, एक आधा अगर टीचर अच्छा काम करने वाला हो तो बाकी के उनके सहयोगी बोलते हैं ये मैनेजमेंट का चमचा है। कोई अच्छा थोड़ा बहुत सोशल वर्क करने की प्रेरणा देता हो तो उसको डायलॉग मारे जाते हैं उसके प्रति, अब इनको पद्मश्री मिलने वाली है। तो ऐसे शिक्षकों को मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप चाहे कुछ मत करो, पर आप में से कुछ लोग जो सोशल कमिटमेंट के माध्यम से काम करना चाहते हैं, जिनके कन्विक्शन से काम करने की, उनको सिर्फ निरुत्साही मत करो तो भी आपके बड़े उपकार होंगे। अभी तो शायद स्टाफ रूम सुधर गए होंगे, पता नहीं, पर मेरा अनुभव बता रहा हूँ। वहाँ जिन शिक्षकों के बारे में हमारे छात्र जीवन में हमको आदर लगता था, वो मेरे साथ वहाँ थे। सबसे बड़ी स्कूल थी और इत्तेफाक से सबको नाम मालूम है, इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। नितिन गडकरी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, 1.5 साल तक मैंने उनको पढ़ाया। हाई स्कूल पहले बोलते थे, बाद में दादा साहेब धनोटे नगर विद्यालय उसका नाम हुआ, जहाँ डॉक्टर हेडगेवार से लगाकर सब उन्होंने वहाँ पढ़े हैं, उस स्कूल के छात्र रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आज सारी सुविधाएं आपको है। हमारी सैलरी अगर आपको बताऊं तो कितनी थी हमारी सैलरी? 365 रुपये मिलते थे मुझे, 365 रुपीज़ वॉज माई सैलरी। आज उस अनुपात में आप लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है, मिलने को ना सैलरी अच्छी, उसमें कोई दो राय रहने का कारण नहीं। पर साथों साथ लोग ऐसा बोलते हैं कि सारा समाज आज आदर्शों से दूर जा रहा है और शिक्षकों से ही क्यों अपेक्षा रखी जाए। इस मामले में भी मेरा आग्रह है कि आपने जो पेशा स्वीकारा है, जिस पेशे में आप गई हो या गए हो, वो आपने स्वेच्छा से स्वीकारा है और मालूम है कि उसकी कमिटमेंट, माँ बाप का जैसा उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो सकता, उनकी जिम्मेदारी जैसे खत्म नहीं हो सकती, वैसा शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन में कि जिनका महत्व और जिनकी जिम्मेदारियां कम नहीं हो सकती। वो अगर जिम्मेदारी से हट गए तो मुझे लगता है कि समाज में आज भी जो आशा का किरण है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ तो भी अगर हमारी करने की इच्छा रही, कुछ अगर करने का ये रहा तो वो भी आशा हमारी ख़त्म हो जाएगी। आइए श्याम बाबू। तो जो हमारी आशाएं हैं वो आशाएं भी खत्म हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है और मेरी गुजारिश है कि भला ही बाकी के क्षेत्र जितने भी डिटोरिएट हो गए हो उनको होने दो, नहीं होने को होना, पर अच्छे अगर टीचर रहे, अच्छे अगर संस्कार देने की कोशिश की तो फिर समाज में कुछ उम्मीद जग सकती है। आपकी भी परेशानियां हैं, सैलरीज की समस्याएं होंगी, बाकी बहुत ढेर सारी समस्याएं, पर उस आदमी के बारे में भी सोचो। आज भी देश में 75 साल के बाद में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि जो दरिद्री रेखा के नीचे हैं। उसमें दावेदारी सिर्फ आंकड़ों के बारे में हो सकती है। आज भी मैं देहात में रहता हूँ, आज भी खेती करता हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ क्या हालत है किसानों की। तो इसलिए जो ये तबका है, आज देहातों की तो अवस्था ऐसी है, वहाँ कोई शादी बच्चियाँ अपनी देने के लिए तैयार नहीं और ना लड़कियाँ जाने को तैयार है। ऐसा सारा सामाजिक एक बदलाव आ रहा है समाज में, उसको लड़ने का सामर्थ्य हम बच्चों को दे सके, ऐसी शिक्षा हमको देनी है। और शिक्षा नीतियाँ तो बदलते रहती है। आज़ादी के बाद में जितना परिवर्तन एजुकेशन फील्ड में हुआ,
न जाने कितने आयोग उस पर अपॉइंट हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे शिक्षाविद राष्ट्रपति बने, राधा कृष्ण जैसे शिक्षाविद इस देश के राष्ट्रपति बने, पर जितना परिवर्तन उसमें होना था उतना परिवर्तन नहीं हुआ, यह सच्चाई है। आज इस बहाने आपके सन्मुख मेरे विचार रखने का मुझे सौभाग्य दिया। ये हमारी जो अनन्या है वो बहुत ही यानी करते रहती है, कुछ ना कुछ एक्टिविस्ट ही है, सदैव कुछ ना कुछ करती है। दिल्ली से विदर्भ और दिल्ली को पूरे देश से जोड़ने का भी काम वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से करती है। उसको, हिमांशु को और सभी उनके साथ में जो भी साथी है सबको तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। शब्द हमें आशीर्वाद की तरह प्रतीत हो रहा है। Thank you so much for your words of wisdom, for the uplifting words on women empowerment and the importance of relations in society and community. Thank you so much. We are really blessed to have you here. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are truly honored to have among us Shri Shyam Jaju, the senior leader and ex-vice president of Bharatiya Janata Party. Please welcome him with a huge round of applause. He is a renowned leader, a committed and passionate social worker who has infused strong ideologies and ideas of Bharatiya Janata Party among the people. श्री श्याम जाजू जी का हार्दिक स्वागत है। अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपका तहे दिल से स्वागत करती है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री मनोज चौधरी जी का, जो ट्रेजरर हैं अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को, मंच पे हैं और श्याम जाजू जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। श्री अखिल कौशिक जी भी आ गए और श्री सारंश कौशिक जी वो भी आ जाए। नीरजा दीदी से मैं निवेदन करूंगा श्याम जी का स्वागत करें। I would request Sri R.D. Patel sir to please join in the putawar. सर इधर देखना। एक मिनट मैम। अब मैं प्रार्थना करूंगी श्री श्याम जाजू जी से कि वो भाव जी का पुष्पगुच्छ और शॉल देके स्वागत करें। With Srimati Savitri Bai Phule Award. So we will be taking out your names alphabetically. तो कोई भी offended feel नहीं करेगा कि किसी का नाम पहले या बाद में. So we are taking the names alphabetically. I would request the team to please be ready with the trophies and certificates. So first of all, I would like to invite Adarsh Public School, Bali Nagar, New Delhi. The principal is Mrs. Ridhima Kharyal. Please come on the stage, ma'am. Next, I would like to invite Mr. Prashant Sehgal is also here. You are requested to come on the stage. Sir, please give a big round of applause for him. यस मैम प्लीज सामने। Next, I would like to invite Ms. Shweta Goyal, Headmistress of Bal Vikas Public School, Delhi. Model School, Vivek Vihar. Kaushik, Principal of Dev Public School, Delhi.
Mr. Madhu Parashar, Principal of Dr. M.K.K. Arya Model School, Panipat. Yes, sir. Mrs. Indu Sharma, Principal of DRP Convent Secondary School, Delhi. इस पर ध्यान रखिए, सीधा हो जाएगा। Mrs. Indu Sharma done? Okay. Next, I would like to invite Mrs. Shail Sinha, Principal of East Delhi Public School, Ghaziabad. Yes, Mrs. Indu Sharma, Principal of DRP Convent Secondary School, Delhi. Please put your hands together for all principals for the excellent work in the field of education. Mrs. Shail Sinha, Principal of East Delhi Public School, Ghaziabad. Mari Verma, Principal of Ganga Harti School, Delhi. Dr. Neha Sharma, Principal of G.D. Goenka Public School, Ghaziabad. Excuse me, ma'am. Mr. Atul Kumar Singh, Principal of Hargobind Secondary Public School, Mandroli, Delhi. Dr. Arjun Mehrotra, Principal of Kalka Public School, Alaknanda, GK2. Center. Of Lingaya School, Faridabad. Mrs. Bhavna Arora, Vice Principal, Little Flower International School, Delhi. Ms. Nusrat Sultana, Principal of MA Ideal High School, Hyderabad. तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आज तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। कल टीचर्स ने सेलिब्रेट करना है, आप प्रिंसिपल के लिए तालियां नहीं बजाओगे तो सेलिब्रेशन कैसे होगा? डॉक्टर मोहम्मद अनवर, चेयरमैन MA आइडल स्टार स्कूल, हैदराबाद। डॉक्टर प्रिया माथुर, डायरेक्टर मॉडल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली। Mrs. Smriti Yadav, Vice Principal of SR Capital Public School, Naveen Chadra, Delhi. Of SR Capital Public School, Mrs. Savita Yadav ma'am has also come. Ma'am, please join us in the photograph. Karuna ma'am, please come on stage. के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हमारी कृतज्ञता और सराहना दर्शाते हैं। सर थोड़ा पीछे आइए। स्कूल, दिल्ली।
Dr. Anita Minocha, Headmistress, New Oxford Public School, Bihar. Mr. Anup Kumar, Principal, New Oxford Public School, Bihar. Dr. Nirmal, Principal, OK Model School, Delhi. हमारे बीच में श्री बलराम गुप्ता जी भी आ चुके हैं, उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन है मंच पे आए। बलराम गुप्ता जी, स्वागत है आपका। शशि शेखर शर्मा जी जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनका भी स्वागत है। कृपया मंच पे आए, आपका स्वागत है। शशि सर, नीरजा जी उनका स्वागत करेंगे। यस मैम। Arvachir International School, Miss Ayushi Sharma, Mrs. Dimple Puri. Public School, Mrs. Toshan Kaushik, Head of School, Prakash Punt Vidya Sadan, Delhi. Miss Geeta Gupta, Principal, Prerna Convent Public School, Delhi. Dr. C.B. Mishra, Principal, Pradyos School, Accord Ashok. School, Ashok Vihar, Delhi. Next, I would like to invite Ms. Sadhana Rustogi, Principal, Pune Public School, Delhi. Dr. Yogesh Vats, Managing Director, Pushpanjali Jyotsna, Principal of Queen Global International School, Delhi. यस मैम, इधर देखिए। Queen Global International School, Delhi. Mr. Jay Minocha, Director of Queen Global International School, Delhi. Ms. Sonia Kashyap, Vice Principal of Rainbow In School, Senior Secondary, Janakpuri, Delhi. Mr. Satish Sharma, Vice Principal of Ramjas Senior Secondary School, 3, Delhi. Principal of RCS Senior Secondary School, Delhi. Vice Principal, Ramjas Senior Secondary School, number 3, Delhi. Principal, Rainbow English Senior Secondary School, Janakpuri, Delhi. राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पास जिम्मेदारी है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पर्यावरण शिक्षा की। उनसे निवेदन है एक बार मंच पे आए, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। इतने ही हम Sunita, Principal of Yes, sir. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, number 2, Maan Sarovar Park,
Delhi. Principal of Shiva Shiksha Sadan, Sonipat. ठीक है भाई तू नाम मत कर दे मिसेस करुणा यादव, प्रिंसिपल श्री एसआर कैपिटल स्कूल, दिल्ली। मिस्टर प्रमोद शर्मा, प्रिंसिपल Yes, ma'am. संत कृष्णा बोध Hello, sir. शिक्षा सदन। सामने Of Sarvodaya Kanya Vidyalay, number 2, Mansarovar Park, Delhi. मिस अंजू शर्मा, हेड ऑफ स्कूल, संत कृष्णा बोध शिक्षा सदन। मैम यस मिस ज्योति भारद्वाज, प्रिंसिपल संत कृष्णा बोध पब्लिक स्कूल। मिसेस रीता चौधरी, प्रिंसिपल सुमन विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली। स्कूल, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। यस सर मिसेस सविता भटनागर, हेड ऑफ स्कूल, विद्या विहार शिशु बाल विद्यालय। मिस पूनम भटनागर, प्रिंसिपल विद्या विहार विद्यालय, दिल्ली। मिसेस गीता रानी, प्रिंसिपल विजय दीप पब्लिक स्कूल, दिल्ली। भाई यार तुम भी परेशान कर ले मैं तुमने अगर इस समय इजीली को यार फ्लैश तो आएगा ही यार जब मैं फ्लैश लगा रहा हूँ तो इधर हो जाओ मिसेस शशि गुप्ता, सूर्या मॉडल अगर आप स्कूल, फोटोग्राफर उत्तम सेंटर नगर। तो यस मैम आप आगे ले आओ ना यस तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रांगण को तो हमें हमेशा ही भरे रखना है, इससे जोश बढ़ता है। भाई फ्लैप मोड़ूंगा ना तो एक साइड मिसेस गीता रानी, विजय दी पब्लिक स्कूल। तो आपको ही पता है मिस फरहीन बेगम, हेडमिस्ट्रेस, हैदराबाद। मिस मिस शशि गुप्ता, सूर्या मॉडल स्कूल, उत्तम नगर। मिस वंदना अरोड़ा, विवेकानंद
मैम थोड़ा सीधे, सर थोड़ा सीधे हो जाइए। मिस नीता Yes, ब्लॉ ma'am. प्रिंसिपल लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। मिस Neeta Dua ma'am, please Ma'am. come on the stage to felicitate Geeta Bal Bharti Senior Secondary School. I would like to invite Shalini Midha ma'am from Geeta Bal Bharti Senior Secondary School. हमें क्लास में बच्चों को कहना पड़ता है चुप हो जाइए, तो यहाँ पर मुझे बार बार कहना पड़ रहा है प्लीज तालियां बजाइए। Ladies and gentlemen, now I would like to invite Yes, sir. the co-founder of SAR Education Private Limited, Mr. Abhishek Goel, to please come on the stage. Mr. Abhishek Goel from SAR Education Private Limited. एक्सक्यूज मैम। मेरे बेटा भी पढ़ता है, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। सही है, सही है। Mr. Sunil Sharma, National Sales Head of Zoom Publishers Private Limited. Mr. Sunil Sharma. सर एक्सक्यूज मी। Faridabad. Please welcome her with a huge round of applause. Mrs. Deepti Menon, Curriculum Head of Aravali Group of a School, Faridabad. यस मैम। गुप्ता जी भी आ चुकी हैं, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक हैं। मैम प्लीज वेलकम बी ऑन स्टेज। मैम मैं नीरजा जी से और अपने मुख्य अतिथि जी से कहूँगी प्लीज उनको वेलकम करें। नीरजा मैम। ठीक है, हिमांशु सर, रोहित सर, प्लीज वेलकम मीना गुप्ता मैम। लक्ष्य सर। Ladies and gentlemen, on behalf of one and all present here, I extend a very warm welcome to Shri Subhash Gupta, the President of Maharaja Agrasen Hospital, Punjabi Bagh, and Dr. Meena Gupta, the Founder President of Mahila Mandal Punjabi Bagh. Please welcome them with a huge round of applause. यस। School Faridabad to please come on the stage to be felicitated. And Mr. Manoj from Satyabhama Chauhan from Manoj Public School. Satyabhama Chauhan from Manoj Public School. Both of you are requested to please come on the stage.
Yes, ma'am. क्या कह रहे हो? जब ये हमारे सामने खड़े हैं, मुंह जाने दो, पाए ना। Presentation of teachers, I would like to invite Ms. Vidhi ma'am and Divesh sir from SHAPE, सेंटर Mohan sir from Synergy Institute of Music, and Ajay Dalmia sir from Dalmia Group. Please come on the stage to start the felicitation of teachers with Savitri Bai Phule National Award, field of education, environment and social justice. So be ready teachers. ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिदिन त्योहार है। नवरात्रि के 9 दिन, दिवाली के 5 दिन, होली के 2 दिन और अभी हाल ही में रक्षाबंधन भी 2 दिन ही था। तो देखिए ये कैसा संयोग है कि आज शिक्षक सम्मान है और कल शिक्षक दिवस है। तो अपने कार्यक्रम के इस पड़ाव में अब मैं आज सर्वप्रथम जिस शिक्षक को आमंत्रित कर रही हूँ, मिस ऋतु अरोड़ा, आदर्श पब्लिक स्कूल कॉलेज, आदर्श मिस रेणु ग्रोवर and Miss Anshu Chabra. When we announce the name of a school, the entire team is requested to please be on the stage. Thank you. Adarsh Public School. Next, Arvachin International School. Miss Sangeeta Sharma, Miss Priya Grover, Mrs. Natasha Sharma. Can we have single photograph for one school, sir? I request individual. Okay. Next, Bal Vikas Public School Delhi, Miss Sonia Malhotra and Mrs. Malika Bose. Yes, ma'am. मैम मैम थोड़ा सा साथ में लो। मैम इधर देखिए। एक मिनट, आप इधर चुप हो जाएंगे क्योंकि सारा स्पेस उधर चले गया था। थैंक यू। यस मैम। रेखा बशेनी। यस मैम। यस मैम। Yes, I request Mr. Arjun Minocha, Director of Dayanand Model School, Vivek Vihar, to please come on the stage to be felicitated. Please put your hands together for all these principals. Yes, ma'am. Done.
दयानंद मॉडल स्कूल विवेक विहार, मिस आस्था जगी एंड मिस रेखा वर्षन। यस मैम। सर सामने देखिए। स्कूल द्वारका, मिस अश्विता गुप्ता। यही इच्छा है कि हर एक टीचर को हम स्पेशल फील कराएं, एक एक फोटो स्पेशल टीचर का हो। ग्रुप में करने से जो टीचर की जो स्पेशलिटी थोड़ा कम हो जाएगी। बस ये आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से आते रहें। धन्यवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यस मैम। देव पब्लिक स्कूल, मिस्टर मनीष मित्तल एंड देव पब्लिक स्कूल, मिसेस पूर्णिमा कौशिक। The senior advisor, Mr. Mridul Avasthi ji, on stage for us. Mridul Avasthi ji, senior advisor, Affordable Private School. यस सर। मिसेस रीमा रावल, मिसेस जसप्रीत कौर एंड मिस सीमा भाटिया। एंड मिस शैली भारद्वाज। From East Delhi Public School, Ghaziabad, Miss Pinky Sharma, TGT, Miss Poonam Verma, Assistant Teacher, Mr. Laltesh, TGT, and Miss Poonam Singh, TGT. यस मैम। Next, I would love to invite teachers from GD Goenka Public School, Ghaziabad. They are Miss Anita Sharma, PGT Fine Arts, Mr. Arjun Jain, PGT Accounts, Miss Shweta Singh, PGT Political Science, and Miss Madhu Tyagi, PRT. All of you are requested to please come on the stage after East Delhi Public School has received the award. Ganga Happy School, please be ready. Happy School, Miss Manju, PGT Science, Mrs. Madhu Pawar, PGT Sanskrit, Mrs. Poonam Gupta, Office Management. Please come on the stage to be felicitated. A huge round of applause for all of them. Geeta Bal Bharti Senior Secondary School, please be ready. यस मैम। एक्सक्यूज मैम। We are really thankful to Girish Gandhi sir, who has given his precious time from his busy schedule to bless all of us here. Shweta Tiwari, PGT Science, Ms. Shikal Malhotra, PGT Computer Science,
Mr. Mohan Mukut Sharma, TGT Mathematics, and Mrs. Ekta Saxena, TGT English, and Mrs. Aarti Bhatt, Assistant Teacher. You all are requested to please come on the stage. Government Boys Senior Secondary School, Mansarovar Park, please be ready. I would like to invite Mr. Shoaib Ahmed, TGT Drawing, and Mrs. Vandana Vashisht, Lecturer History from Government Boys Senior Secondary School, Mansarovar Park, to please come on the stage. मैम इधर देखिए। हाई टी का अरेंजमेंट है, बहुत ही प्यार से किया गया है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, तो प्लीज वेट करें। आफ्टर दिस फेलिसिटेशन वी हैव हाई टी, सो उसके बिना आप नहीं जाएं। यस मैम, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। यस मैम, ठीक है। यस यस सर, ओके डन। यस मैम, ठीक है सर। Government Girl Bala, TGT Natural Science, and Mr. D.K. Azad, Counselor from Government Girls Senior Secondary School, Azadpur, are requested to please come to the stage. यस सर। After this, I will request Mrs. Sunny to come on the stage. यस मैम, डन। ठंड लग गई। यस मैम, ठीक है सर। सर सर Public School, Delhi, please be ready. Cambridge Public School. यस मैम, Little Flower International School, Delhi. Please come on the stage. ठीक है। Both the schools are requested ma'am. to please be ready. Teacher and Miss Nitika, art teacher from Little Flower Public School, Yamuna Vihar, are requested to please come on the stage. यस मैम, डन। Singh PGT Physics. Both of you are requested to please come on the stage. यस मैम, School here from Little Flower Group of Schools, Little Flower Public Senior Secondary School, Delhi. Mrs. Lalita Gautam, PGT Science, and Mrs. Rekha Purana from Little Flower Public Senior Secondary School. Rekha Yes. Khanna, ma'am, please come on the stage. ठीक है सर। यस मैम, सामने।
ओके डन। डन। अच्छा आप सब ये बताइए, आप सबके चेहरे की हंसी कहाँ गई? इतनी देर से मैं देख रही हूँ, आज तो रिजल्ट आया है, प्राइजेस मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं और हंसी गायब है। ऐसा लग रहा है एग्जाम चल रहा हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। कितने सीरियस क्यों हो गए आप लोग? हमारे जो चीफ गेस्ट थे, ऑलमोस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी जा चुके हैं। वी कैन नाउ कम टू आवर ओरिजिनल लेवल। तो आज एक काम सीरियस मोड अपने पर्स में डालते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? रेडी? बच्चे बनना है, किनको बनना है भाई? किसी को भी नहीं बनना। चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम और आप लोग को दोबारा वो एंजॉय करने को मिल रहा है। आप तो कह रहे हैं किसको किसको एंजॉय करना है भाई? किसको किसको थोड़ा सा सीरियसनेस, इतनी बोरिंग जो अभी शेड्यूल चल रहा था प्रेजेंटेशन एंड ऑल, तो उससे बाहर निकलना है। तो आप थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं क्लासरूम से, ठीक है? पहला एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैं बोलूंगी तो टीचर्स इन स्कूल, दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, यू आर बीइंग फेलिसिटेटेड। अच्छे टीचर्स हैं हम सभी। देयर एट टाइम्स चाहिए होता है ना ब्रेक, किटकैट ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है? बट पिटी मी, मेरे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे बैठे हैं। क्या पता कल टीचर्स डे में डांट भी पड़ जाए, बट आई विल डायरेक्टर मैम, नहीं तो इंचार्ज मैम, कहीं से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कुर्सी में सेंसर्स तो नहीं लगवा रखे सर, कोई अलार्म बज जाता है ऑफिस में, जो बैठो क्यों आ जाते हैं। और वो अगर ना आए तो हमारे पीटीआई हैं, वो ऐसे घूर के जाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम आज मैंने कर दिया, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? यस या नो? जेन्युइन आज प्रिंसिपल्स कुछ नहीं कहेंगे टीचर्स को, आई रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं डरने की जरूरत है। दे आर ऑल्सो इन अ वेरी लाइट मूड। बहुत सीरियस हमने खेल लिया, थोड़ा सा लाइट मूड में आता है। ऐसा होता है आपके साथ कभी? किनके साथ होता है तो तालियां बताएंगी, होता है कि नहीं होता आपके साथ? सभी के साथ होता है सर। थैंक गॉड मैं भी बच गई, मुझे नहीं डांट पिटेगी। ओके आत्मज्योति मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वो कौन सी चीज है जिससे आपको क्लासरूम में सबसे ज्यादा डर लगता है? कैमरा। तो मेरा जवाब आपने ही बोल दिया। मुझे भी थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सीसीटीवी कैमरे से डर लगता है, क्योंकि ऑफिस वाला सब देखता है। और किसी को मैं चाहूंगी इस तरह के कोई जेन्युइन एक्सपीरियंसेस। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, भी PA1 का एग्जाम हुआ। 10th क्लास में एक बच्चा है हमारा, प्रलय, नाम से ही प्रलय आप समझ सकते हैं। हमारी अंजू मैडम वहां बैठी हुई हैं। अंजू मैम ने PA1 का रिजल्ट देखा और प्रलय को बुलाया। प्रलय, इस बार आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो कल जो PTM में है उसमें पापा को बुला के लाना, पापा के बिना आना नहीं है। वरना, एक वरना भी ऐड कर दिया, ऑनलाइन जमाना है भाई, अभी वरना का जवाब मिलेगा। तो प्रलय ने भी बोला वरना क्या क्या, हर क्लास में एक दो ऐसे बच्चे होते हैं। तो वरना बोला उन्होंने कि वरना आपका रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके पापा को टैग कर दूंगी, क्योंकि जमाना नया है, कोरोना ने सब बदल दिया है, धमकियां भी नई नई हो गई हैं, हाथ तो उठा नहीं सकते। तो फेसबुक पर आपका रिजल्ट अपलोड करके मैं आपके पापा को टैग कर दूंगी। प्रलय भी कहाँ कम थे, प्रलय तो प्रलय। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी मम्मी को बता दूंगा कि पापा की फ्रेंड लिस्ट में मैम का नंबर है। तो जैसे को तैसा, तो ये भी नहीं कर सकते। अब सोचो कौन से पनिशमेंट के तरीके हमें निकालने होंगे। अब बस मैं अपनी बात एक और शेर से खत्म करना चाहूंगी। उम्र की राह में, पहले सॉरी बोल दो अपने प्रिंसिपल सर, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल मैम को। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचती हूँ कभी कभी काम करके सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं, सोचती हूँ कभी काम कर करके सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन कम वक्त ये ख्यालात इंक्रीमेंट के बाद बदल जाते हैं। सर, टू बी नोटेड, बहुत तालियां बज रही है। थैंक यू सो मच। ओवर टू आप। जो फिर से कौन गा सकता है ये? कोई है? चंदा चमके चमचम चमचम चीखे चो करना चो। चलिए मैं एक और देती हूँ।
Yashika ma'am, are you ready? There is a prize. There is a prize. Prizes. Surprise for you. So if you can पहले try सीख कर this. आई हूँ। Come on. चंदा चमके चम चम. चंदा चमके चम चम, चंदा चमके चम चम। सर मोबाइल पे गूगल नहीं करना है। चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। क्लैप, ये मैम के लिए जोरदार तालियां। अच्छा एक और है, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊंचे ऊंट की। इसको आपने 3 बार बोलना है, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊंचे ऊंट की। है कोई? ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची पूंछे ऊंट, ऊंचे ऊंट की। फर्स्ट चंदा चमके। ओके याशिका मैम। चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। Wonderful. Wonderful. Please introduce yourself once again. I am Kajal Khanna from Queen Global International. Great, great. We appreciate. Thank you so much, ma'am, for being so sportive. Thank you so much. और याशिका मैम, आप और भी राइडर्स से टॉप टिस्टर लाई हैं तो आप बता सकते हैं। चांद 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, चांद की ही बात होनी चाहिए एक्चुअली। अब एक नेक्स्ट वन पे चले। पे आए अपना शेप के बारे में बताएं। शेप में आप क्या करते हैं? स्वागत है आपका। ऐसे कोई ना जाए। धन्यवाद। काफी लोग जा रहे हैं। धन्यवाद सर। और ये खाने के पहले वाला जो बोलना होता है वो सबसे कठिन होता है, सुनना कोई चाहता नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सो इस अवसर पे मैं तो बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 25 साल पहले स्कूल छोड़ा था या 30 साल पहले। सर मेरे बालों पे मत जाइएगा, उम्र कम मेरी, तो वैसी फीलिंग हो रही है। बट आज थोड़ा लग रहा है कि जब एक टीचर 40 बच्चों के सामने रहती थी तो उनको कैसा महसूस होता होगा। आज वो महसूस मुझे हो रहा है जब 100 से ज़्यादा टीचर्स के सामने खड़ा हूँ। ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। We have started a company in Mumbai and we offer emotional wellness to the students in form of a annual curriculum. इस हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उस या उसको साइलॉस में हम बेहतर नहीं कर सकते। So what curriculum we have created is that we take sessions for parents, एंड जो आप लोगों ने अभी इतने सारे अवार्ड लिए हैं, दिस इज नॉट फॉर व्हाट यू डू एकेडमिकली, इट्स बेसिकली व्हाट डू यू डू इन द 3 शिफ्ट्स ऑफ द डे। इट स्टार्ट योर वर्क इन द मॉर्निंग टू द स्कूल एंड देन यू गो बैक टू द योर रेगुलर होमवर्क्स ऑल्सो। सो वी ऑल्सो वर्क ऑन द इमोशनल declutter of the teaching staff members, and we run through digital and physical sessions. We also take psychometric test. एंड गुरु दक्षिणा के रूप में आज मैं भी एसोसिएशन के स्कूल के ओनर्स प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने तरफ से गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। आई विल बी एबल टू शेयर माई बिजनेस कार्ड्स विद वन ऑफ यू, एंड 3 डेमो सेशंस in whatever way you would like to take, basically digital demo sessions for the benefits of your students, for your parents and for your teaching or non-teaching staffs is something which we would like to present here. So I wish you all the best and thank you so much for gracing this occasion, and we are what we are because of people like you. Thank you so much. Is she here? Miss E. Swarup Rani. Okay, next. Manoj Public School, Delhi, Miss Ritu Chauhan and Miss Satya Bhama. Manoj Public School. क्या वो है यहाँ पर? Yes, ma'am. Rajni Dayal. Prema Yadav and Mrs. Pallavi Mathur.
मैम मिसेज रोही परवीन, यस मैम, यस मैम, Yes, sir, to please come on the stage for felicitation of awards for teachers. डन, यस मैम, नेक्स्ट इज परामिता हेरिटेज स्कूल, मिस ललित मोहन साहू। यस मैम, नेक्स्ट प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल, मिस अरुणा बाला एंड मिसेज रति जैन। Of one school to please come together so that we will have a group photograph. Yes, ma'am. It's taking a lot of time. You all are getting late, especially you. So, if you have time, we can go for individual photograph as well. और अगर आपको जल्दी है तो आप अपने स्कूल का ग्रुप फोटोग्राफी करा सकते. It's your choice. यस मैम, यस मैम, नेक्स्ट पुष्पांजलि मॉडल पब्लिक स्कूल, मिसेज निधि शर्मा। यस सर, Miss Shalu Oberoi, academic head. Miss Kajal. यस मैम, एक्सक्यूज मी, Prerna Convent Public School Delhi, Mrs. Dimple TGT and Miss Anjali Sharma TGT. Queen Global is done. यस मैम, यस, Three Delhi to be ready. Mr. Mahesh Sharma, art teacher, and यस मैम, नेक्स्ट आरबी कॉन्वेंट स्कूल, मिस शिखा। मैम, Shiksha Sadan Sonipat, please be ready. I would like to invite on stage Ms. Jyoti Sharma, Yes, ma'am. coordinator, and Mrs. Anita Tiwari, primary in charge. Please come on the stage. यस मैम, नेक्स्ट श्री एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल, मिस पिंकी। नेक्स्ट
The managing director of Next, I would invite Shri Krishna Bodh Siksha Sadan to be ready. Shri Krishna Bodh Siksha Sadan Delhi to be ready. If you get a wrong certificate, you can change it, no problem. Yes, Shri Krishna Bodh Siksha Sadan, Miss Hema Sadan Delhi, Miss Hema Bisht PGT Social Science and Mrs. Bharti Sharma PRT. Delhi, they are Mrs. Megha Sharma PGT Home Science and Mrs. Kamna Sharma Special Educator. सर एक मिनट सर सामने मैम सामने Next, I request Suman Vidya Mandir Secondary School to please be ready. Mrs. Shalini Sharma and Mrs. Grishma Jain. Vikas School of Excellence Hyderabad to please come on the stage. Miss Zari. हम उल्टा हो रहा है कार्ड यस And Mr. Umesh Tyagi, Mrs. Akansha Garg. Last but not the least, we have Vivekanand International School Delhi. Miss Yasha Kapoor PGT to please come on the stage. And after this, if any school is left, any teacher and अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है और मैं एप्सा परिवार की तरफ से उन सभी श्रेष्ठ व्यक्ति डन सर सर थोड़ा पीछे आ जाए सॉरी यस मैम थैंक यू आज सारे लोग आ गए वैसे कितने लोग साइंस की बैकग्राउंड से हैं या पढ़ाते हैं या पढ़े हो कभी ठीक 2-3 लोग तो हैं चलिए हम 9th-10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आर्कुडीज प्रिंसिपल या तो होगा थोड़ा बहुत हाँ जी सर हम पढ़ाते हैं कि व्हेन अ बॉडी वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब देखिए मैं पीजीडी फिजिक्स हूँ तो और कभी भी हूँ शायरी भी करता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ सोचा
और मैंने इसको किस तरह से पढ़ाया। जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूब जाता है, जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूब जाता है, तो उसके दिमाग में एक आभासी कमी आ जाती है। ये आभासी कमी लड़की के सैंडल द्वारा हटाए गए बालों के भार के बराबर होती है। धन्यवाद।